Hello students, welcome back to my channel Simplified Maths. Dear students, today we are continuing with chapter 9 differential equation. Okay, and in the differential equation today part 5 we are beginning, and in the part 5 we are continuing with exercise 9.4. Okay, which is already going on, exercise 9.4. Okay, now we have completed up to 14 sum number 14 तक हमारा हो गया है, in which what was there in the 14th up to general solution as well as a particular solution. Now sum number 15 onwards दोस्तों there are all sums which are problem sums. Okay, now the problem sums are quite important, and the only thing you should know is how to generate or how to create the equation from the given problem. Okay, आपको ये आना चाहिए कि इक्वेशन कैसे बनाया जाए. Once you get the correct differential equation from the given problem, assuming whatever the notation x, y और वॉल्यूम है तो v ले लो कुछ भी करके, right? And then once it is correct, your differential equation you have generated is right, then everything is just like the previous 14 sums. Now in this also दोस्तों 15 and 16 sum are exactly the similar sums. दोनों सेम है. Here little bit you have to recall the application of derivative also. कैसे यूज होता है देखना. पेज नंबर 396. Okay, sum number 50. See what is the question there. Find the equation of a car passing through the point 0, 0, that is origin, and whose differential equation is y dash is equal to e raised to x sin x. Okay, right? So given differential equation क्या है यहाँ पर. Given differential equation is, what is y dash mean? dy by dx. Okay, so you can just take it as dy by dx is equal to e raised to x sin x. So for this particular sum and even in the 16 sum, no worries. Why no worries? Because already differential equation is given ready made, तो कोई चिंता नहीं है. ठीक है, आपको सीधा सॉल्व ही करना है इसको. और पासिंग थ्रू 0, 0 ऐसा क्लियर लिखा हुआ है, राइट. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 0. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, यू फाइंड आउट इट्स जनरल सॉल्यूशन. After getting the general solution, then you have to use 0, 0 point, then you get the value of c. ठीक है, तो यहाँ से वेरिएबल सेपरेबली मेथड है. ओनली वन एक्सरसाइज विथ ओनली वन मेथड इन दिस एक्सरसाइज. सो वेरिएबल सेपरेबल के हिसाब से क्या होगा यहाँ पर, dy is alone, no y coordinates there. So dy is equal to e raised to x sin x dx. Okay, right? Now see what is happening, you know. If you take the integration on both the side like this, now there is a one way to integrate the right hand side is little bit longer one, and which is our usual method UV मेथड, जो मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे देन द प्रॉब्लम इज दोस्तों दैट इसको आपको 2 टाइम्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करना पड़ेगा. हाउ मेनी टाइम्स? यू हैव टू यूज़ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 2 टाइम्स. ओके, एंड इन द सेकंड टाइम द सेम टर्म विल अपीयर देयर. ओके, सो जैसे हमने प्रीवियसली जैसे इंटीग्रेशन के सम्स किए थे, तो विथ द सेम टर्म इज अपीयरिंग, देन वी यूज टू राइट इट ओवर आई ओवर देयर. आई लिख देते थे. तो यहाँ पर अगर आप ऐसे करोगे तो आप क्या लिखोगे, हमने तो दिस इज नॉट आई इक्वल टू, वी हैव नॉट स्टार्टेड विथ आई इक्वल टू, सो प्रॉब्लम हो गया. तो अगर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करना है दोस्तों, तो आपको क्या करना होगा, राइट हैंड साइड को I1 सपोज करके सेपरेट I1 करके फिर उसका पूरा सॉल्यूशन करके फिर आपको वहाँ पे यहाँ रिप्लेस करना पड़ेगा.
ओके। सो मेरे ख्याल से ये गड़बड़ वाली बात है, सो बेटर नॉट टू डू इट। सो हम क्या करेंगे, एक दूसरी अच्छी मेथड है। ओके, ऐसा कोई भी सम आ जाए, अगर साइन एक्स और कॉस एक्स दो में से कोई भी हो, e raised to x sin x or e raised to x cos x, one best method is there. Just see what I am doing. 1 upon 2 integration e raised to x into, means what I am doing, you know, divide and multiply by 2. So यहाँ पे 2 sin x हो गया ना, 2 sin x. So 2 sin x को भी split कर देंगे, it will be sin x minus cos x, ओके, प्लस cos x और माइनस cos x प्लस cos x कट हो गया, प्लस sin x, ओके, ब्रैकेट ओवर, बिग ब्रैकेट ओवर dx। ठीक है, राइट। देखो क्या फ़ायदा हो गया, कितना सिंपल हो गया। वो उसमें हमको दो बार आए वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करना पड़ता। अभी देखोगे ना तो ये फर्स्ट ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन ये रहा, ये रहा, ठीक है, और बार ई रेज़ टू एक्स है। देखो साइन एक्स डेरिवेटिव इज कॉस एक्स डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स, बट इट इज माइनस कॉस एक्स, सो प्लस साइन एक्स हो गया, ठीक है ना, राइट। सो पूरा हो गया। कौन सा एक फॉर्मूला आ गया, ई रेज़ टू एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स आ गया कि नहीं। सो दैट यहाँ से हम क्या करेंगे, ये डी वाई का वाई हो जाएगा 1/2 ई रेज़ टू एक्स एफ एक्स, सो ई रेज़ टू एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो गया। कौन सी फॉर्मूला यूज़ की हमने यहाँ पे, जस्ट टू रिकॉल, इंटीग्रेशन ई रेज़ टू एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, याद है ना ये फॉर्मूला। सो आंसर इज ई रेज़ टू एक्स एफ एक्स, ये हमारा आंसर है, ठीक है दोस्तों, राइट। सो यूजिंग दिस यू गॉट द आंसर। ये जो सॉल्यूशन मिला हमारा, ये क्या हुआ पता है, दिस इज ए जनरल सॉल्यूशन, ओके। ये जो भी आंसर मिला विच इज द जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अभी रीड द सम that the find the equation of the curve passing through the point 0 0. So now this passes through which point, 0 0, okay. It passes through the curve, okay, and the curve passes through 0 0. So अब कौन सा सॉल्यूशन आ जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें हम 0 0 रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो आप 0 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 0 इक्वल टू 1/2 ई रेज़ टू 0 इंटू साइन 0 0 माइनस कॉस 0 1 प्लस सी। ई रेज़ टू 0 का वैल्यू भी 1 होता है, इज़न्ट इट। सो ये -1 ही हो गया है ना, अपॉन हाफ तो ऑलरेडी और है ही, अपॉन माइनस हाफ हो गया फाइनली। So you have minus half plus c, 0 equal to minus half plus c हुआ, so that you have c is equal to 1/2। अब ये वैल्यू जो मिली c, वो यहाँ पे c की जगह पे रख दो तो हमारा रिक्वायर्ड कर्व मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? सो thus you can say, so the required, they ask the question what they find the equation of a curve, ऐसे पूछा हुआ है। सो द रिक्वायर्ड कर्व इज, तो ये पूरा कॉपी करना है, प्लस सी के बदले हाफ लिखना है, दैट्स ऑल। सो वाई इज इक्वल टू हाफ ई रेज़ टू एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस हाफ, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों, राइट। So I hope you understand this very easily. 15 sum जैसे हमने किया ना, just like that 15 sum is exactly the similar, कोई फर्क नहीं है उसमें, खाली पॉइंट जो 0 0 था उसके बदले आप देखोगे तो पॉइंट दिया हुआ है 1 - 1, एंड ऑल्सो देयर इक्वेशन इज गिवन, देयर रेडीमेड इक्वेशन इज देयर।
सो यू नथिंग टू क्रिएट, नथिंग टू जनरेट, आपको कुछ बनाना नहीं है, खाली पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही फाइंड करना है। ठीक है, नाउ आई विल गो फॉर सम नंबर 17। सम नंबर 17 को आप पढ़ो। अब यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आएगी, मैंने बोला था ना यूज़ करना पड़ेगा, राइट। अब देखो क्या है 17 सम में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 -2 given that at any point xy on the curve the product of the slope of its tangent, see the product of the slope of its tangent, तो टेंजेंट का स्लोप हुआ, आगे बाद में पढ़ो, टेंजेंट स्लोप एट एनी पॉइंट एक्स वाई, तो व्हाट इज द स्लोप फॉर्मूला, एट एनी पॉइंट xy on the curve, okay, on the curve. Let me say slope, okay, ऐसे लिख देंगे हम, slope of a tangent, यहाँ पे स्टार्टिंग में ऐड कर दो, slope of a tangent at slope of a tangent at any point x y on the curve is given by dy by dx। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आ चुका है दोस्तों कि dy by dx is always giving you a slope of the curve at a particular point, what that point is taken, dy by dx। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ो कि क्या दिया हुआ है, ओके। Find the equation of the curve passing through the point 0 -2 given that at any point xy on the curve the product of the slope, अब देखना ध्यान से, the product of the slope of its tangent, that is dy by dx, and y coordinates, product of the slope of the tangent and y coordinates, so given that, okay, by the given information or by the given data, you see y into dy by dx, y into dy by dx का मतलब क्या हो गया, product of the slope of the tangent and the y coordinate of the point is equal to the x coordinate of the point is equal to the x coordinate of the point। So मैंने क्या किया, I go on reading the question and then I created the differential equation। Hope you understand this thing। फिर से पढ़े एक बार, फिर से देखो कि what is given to us, that the slope of a tangent at any point xy on a curve and its product with the y coordinate of the point मतलब जो पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया ना, ऑफ दैट पॉइंट, ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। सो ये हो गया हमारा इक्वेशन, दैट्स ऑल, नाउ अपना काम खत्म हो गया। वंस यू हैव दिस इक्वेशन, अब कुछ नहीं बचा, अब तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, y dy इज इक्वल टू x dx, बाद में इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है, x dx, तो यू हैव वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। बट जब तक मुझे याद है यहाँ पे इन लोगों ने c बाई 2 लिया है, पता है क्यों, क्योंकि ये अपॉन टू है, तो 2 एलसीएम लेंगे ना, देन 2 विल गेट कैंसल आउट, तो यू गेट c आंसर में। नहीं तो अगर मैंने यहाँ पे c बाई 2 नहीं लिया तो यहाँ पे 2c आएगा, ये सब गड़बड़ होता है इसमें, ये प्रॉब्लम है ही। सो इफ़ यू फॉरगेट टू टेक c बाई 2, डोंट वरी एट ऑल, कुछ टेंशन नहीं लेना है, आपका फिर भी आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर याद आ जाए तो वेल एंड गुड। अब 2 एलसीएम कैंसिल कर दो दोनों साइड से, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हो गया जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना, दिस इज अ जनरल सॉल्यूशन, राइट। अब जनरल सॉल्यूशन मिलने के बाद यहाँ पे आप फिर से पढ़ो
फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 माइनस 2। ये जो है वो कौन से पॉइंट में से पास हो रहा है? विच पासिस थ्रू, ओके, विच पासिस थ्रू द पॉइंट, ओके, 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 में से ये पास हो रहा है, ठीक है। सो 0 माइनस 2 इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा, राइट। सो दैट मीन्स 0 माइनस 2 रिप्लेस करो, सो ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर मतलब माइनस 2 स्क्वेयर 4, 0 प्लस सी मतलब c इज इक्वल टू 4 मिला आपको। अब नाउ दिस वैल्यू ऑफ c यू जस्ट हैव टू पुट यहाँ पे इन प्लेस ऑफ c, आपको यहाँ पे रख दो, एंड सो you have y square is equal to x square plus 4. This is the required curve. Is the required curve. ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, राइट। सो सी दिस इज द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। ये पूछ सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है ना, राइट। अभी और एक सम हम आज कर लेंगे और वो है सम नंबर 19। सम नंबर 19 को देखो आप। 18 इज जस्ट लाइक द प्रीवियस वन ओनली। 18 में थोड़ा सा ध्यान से देखना कि क्या दिया हुआ है। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड इट, ठीक है, राइट। 18 में एक काम करता हूँ, चलो 18 का मैं थोड़ा आपको स्टार्टिंग लिख के दे देता हूँ। 18 सम जो है ना, इसमें फिर से देखो, एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ अ कर्व द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट मतलब dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज अ स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, ठीक है, एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ द कर्व। ये dy बाई डी एक्स तो हो गया। is twice the slope of the line segment joining the points of contact। तो ये एक्स वाई जो है ना वो पॉइंट्स ऑफ, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पर तो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। एट एक्स वाई वी हैव ड्रॉन द टेंजेंट, सो एक्स वाई इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ओके। सो हियर एक्स वाई इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, इसलिए मैंने थोड़ा स्टार्टिंग लिख के आपको बताया। ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, ठीक है, राइट। एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द पॉइंट -4 -3 इसका, ठीक है, ये जो है ना, सॉरी एक्चुअली कॉल आ गया, सॉरी टू डिस्टर्ब। एक्स वाई इज इक्वल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखो कि दिस स्लोप इज व्हाट इज गिवन टू अस इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द पॉइंट -4 -3, ओके। सो आपको क्या करना है, स्लोप फाइंड करना होगा ऑफ अ लाइन सेगमेंट, स्लोप ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ओके, पासिंग थ्रू, कौन कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, एक्स वाई एंड द पॉइंट गिवन इज -4 -3 इज, ठीक है, राइट। तो इक्वल टू, इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा स्लोप फॉर्मूला, यू नो 2 पॉइंट फॉर्मूला, y डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट y प्लस 3 upon difference of x coordinate in the same order, x plus 4। hope you remember this thing also, ठीक है, अच्छा। and so by the given data, अभी जो डेटा दिया हुआ है, by the given data, okay, so by the given data आपको ये दिया हुआ है कि the slope of the tangent, sorry, dy by dx at any point xy is twice the slope of this line segment। ये जो हमने ऊपर फाइंड किया ना, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है,
2 टाइम्स वाई प्लस 3। एक बार सम ध्यान से पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, राइट। आगे का काम अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। नाउ यू डू इट इन द होमवर्क। ओके, जस्ट फिनिश इट इन द होमवर्क, राइट। कहलाए ना? ओके, होप यू अंडरस्टैंड, डू इट इन द, ठीक है, होमवर्क। नाउ सी, एक्चुअल में ये ज़्यादा बाकी नहीं है। वो वेरिएबल सेपरेबल करके इंटीग्रेशन करके एक पॉइंट भी दिया हुआ है -2 1, वो रिप्लेस करके सी मिलेगा और सी की वैल्यू रख दोगे तो यू गेट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन दैट विल बी अ रिक्वायर्ड कर्व। ठीक है, राइट। अभी सम नंबर 19, ये थोड़ा सा टिपिकल या अलग टाइप का सम है दोस्तों। ठीक है, सम नंबर 19 जो है वो इस तरह से है। अब ध्यान से देखना, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस इट्स ओके, द वॉल्यूम चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट, ऐसा लिखा हुआ है। ओके, सो लेट अस से वॉल्यूम को v और टाइम को t, बिकॉज व्हेन यू से चेंज रेट, नो, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड, okay, changes at a constant rate. When the rate word comes, it is always with respect to time. So let us say at time t, the volume, okay, volume of a balloon, okay, is v, right? And therefore what is given? Given that dv by dt is equal to constant, ये हमको दिया हुआ है। dv by dt is equal to constant is given to us. So constant को just assume that constant is k. Okay, therefore you can say that dv by dt is equal to k. ठीक है, k is a constant, right? So ये हमारा इक्वेशन बन गया, लेकिन इतना मत समझना कि ये तो बहुत ही सिंपल है। देखना कहाँ से कहाँ जाता है। ठीक है, नाउ therefore dv is equal to k dt, right? Now वेरिएबल सेपरेबल हो गया, one side v, another side t. Now integrate, integration of dv is equal to k integration of dt, right? Okay, so ये हो गया v is equal to kt plus c। ठीक है, kt plus c, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया। गॉट दिस? इसको अगर नंबर देना है तो दे दो, नंबर 1। अब देखो, अब ध्यान से पढ़ना है, क्या क्या दिया हुआ है देखो। इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स, इनिशियली मतलब एट t इक्वल टू 0 हो गया कि नहीं, राइट? तो नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा एट t इज इक्वल टू 0 रेडियस इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो आपको ये t और r की वैल्यू, ठीक है, आपको वहाँ पे रखनी होगी। कहाँ पे? अच्छा, एक काम करता हूँ, चलो ये ना वॉल्यूम का हमने जो v फॉर्मूला रखी ना, तो v वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम की फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखो। v इज इक्वल टू व्हाट फॉर्मूला, यू नो, इट इज़ 4/3 पाई r क्यूब, याद है ना वॉल्यूम फॉर्मूला? तो यहाँ पर आप 4/3 पाई r क्यूब लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू के टी प्लस सी। लेट अस से दिस इज नंबर 1, इसको मैं नंबर 1 बोलता हूँ। ठीक है, अब इसमें हम t इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू 3 रखेंगे इनिशियली। ठीक है, तो देखो 4/3 पाई इंटू 27, देयरफॉर 4/3
पाई आर क्यूब मतलब 27 एंड इज इक्वल टू के टी इक्वल टू 0 प्लस सी, राइट. सो यहाँ से 3 9 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, सो सी वैल्यू इज इक्वल टू 36 पाई. ये सी मिल गया हमको. अब ये जो सी है ना वो आप वहाँ पे नंबर 1 में रख दो. सो बाई 1 हमारा जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू के टी प्लस सी. सी की जगह पे आप लिख देंगे 36 पाई. व्हाट वी विल राइट 36 पाई. होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग दोस्तों. ओके अब इसको भी अगर मुझे नंबर देना है तो उसको नंबर दे दो नंबर 2, राइट. अभी आगे पढ़े. आफ्टर 3 seconds it is 6 units. नाउ गिवन दैट ऑल्सो आफ्टर 3 seconds मतलब एट t इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 6 गिवन है ना, राइट. तो अब यहाँ पर आप इसमें क्या करोगे, t की जगह पे 3 रखोगे, r की जगह पे 6 रखोगे. सो दैट 4/3 पाई r cube means 6 cube. I think the value will be 216 possibly is equal to 3 बराबर 3k प्लस 36 पाई. क्या हो जाएगा 3k प्लस 36 पाई. Isn't it? ओके राइट. तो अभी है ना इसमें से मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ टू सेव अ टाइम. फ्रॉम दिस व्हाट वैल्यू यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस वन के. देखो एक तो यहाँ से 3 वो कटेगा, वो डेफिनेटली कट हो जाएगा. यहाँ से भी 3 कॉमन निकाल सकते हो. वो सब सिंप्लीफाई करके के वैल्यू फाइनली आपको जो मिलेगी ना वो के वैल्यू में लिख देता हूँ. यू जस्ट चेक इट 84 पाई मिलेगी. ओके जस्ट डू दिस इन द होमवर्क. ओके सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं है. ठीक है तो एक बार के की वैल्यू मिल गई तो बाद में क्या करेंगे हम के की वैल्यू भी यहाँ पे रख दो. सो बाई 2 10/2 यहाँ से 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू हियर के वैल्यू इज 84 पाई. सो इट विल बी 84 पाई t प्लस 36 पाई. बराबर ना. ओके तो अब देखो कि यहाँ से पाई तो थ्रू आउट कॉमन निकल जाए, कट हो जाएगा. यहाँ से और यहाँ से पाई निकल जाएगा. सो इट विल बी 4/3 आर क्यूब इज इक्वल टू 84t ओके प्लस 36, राइट. गॉट दिस राइट. अभी इसमें से फाइनली आपको क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है वो देखो. फाइंड द रेडियस ऑफ बलून आफ्टर t seconds ऐसे बोला हुआ है. ओके फाइंड द रेडियस ऑफ द बलून आफ्टर t seconds मीन्स ये यहाँ से आपको r फाइंड करना है आफ्टर t seconds. सो t विल बी रिमेन t ओनली. सो योर आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ t ओनली. सो एक्चुअल में दोस्तों ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आंसर आने वाला है. आर क्यूब विल बी 3/4 इंटू 84t प्लस 36 होगा. ठीक है अब यहाँ से ना आप 4 कॉमन निकाल के कट कर दोगे. आर क्यूब है तो आर क्यूब का हमको फाइनली आर फाइंड करना है. सो आई एम जस्ट राइटिंग द आंसर ओनली. ठीक है यू जस्ट कैन चेक इट. 21 4 ज़ा एंड 9 4 ज़ा तो 4 4 निकल जाएगा. 3 को अंदर ले जाना पड़ेगा, बाद में क्यूब रूट लेना पड़ेगा. सो आंसर विल बी 63t प्लस 27 होल रेज टू 1/3 बिकॉज दिस साइड इज आर क्यूब. सो उसका हमको क्यूब रूट लेना पड़ेगा दोनों साइड. वाज दैट क्लियर? ओके सो दिस इज अ रिक्वायर्ड radius. This is the required radius.
एट टाइम टी, रेडियस एट टाइम टी। उन लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था कि आफ्टर टी सेकंड्स, एट टाइम टी के बदले में यूँ लिखूँ कि आफ्टर टी सेकंड्स, आफ्टर टी सेकंड्स, ठीक है, कि भाई टी सेकंड्स के बाद रेडियस कितनी होगी तो इतनी होगी। तो आप इसमें टी की वैल्यू चेंज करते जाओ, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, उसके हिसाब से हर एक सेकंड के बाद रेडियस में, जो बलून में रेडियस में आप जब हवा भरते हो तो रेडियस में क्या चेंज होता है, ये फॉर्मूला से आपको आंसर मिलेगा। ओके दोस्तों, सो होप you will be clear and through in this exercise. Now my plan is to go for the next topic, that is homogeneous equations. But if you feel then we can go for even अभी और 2-3 सम्स बाकी है, 20, 21, 22, अगर वो करने हैं तो नो प्रॉब्लम, वी विल डू इट, अगर आप बोलेंगे तो, ठीक है, राइट। सो बाय द टाइम, हैव अ नाइस डे, एन्जॉय योर डे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।